Now let's focus on the classification of elements, class 11th, and there are four elements which you have to study. Noble gases, which you know that are the inert gases, or rare gases also we call them. Then noble or representative elements, transition elements, and inner transition elements. So we'll focus one by one. If you remember the noble gases, I think you are aware of neon is there, helium is there, neon is there, argon is there, krypton is there, xenon is there, radon is there. So they all are coming in the noble gases. You know that the noble gases are the gases, their outermost orbitals are complete, है ना. ये outermost they are completely filled orbitals होते हैं, and they have a stable electronic configuration. So you are aware of it that they have completely filled. They are completely filled होते हैं ना. Either they follow the octet rules or on duplet rule, you are aware of it, and they are always present in the 18 group or 0 group में they are present. That also you know. So if you focus on the electronic configuration, then please once again I am talking about helium. It's containing 2 electrons, 1s2. It is the exceptional case which you have to keep it in mind. It is an exceptional case because all the noble gases you will see p is there, p6 is always there, means their electronic configuration, if you see the standard one, this thing will be there, ns2 and p6. So they are p block elements also. So they comes in the p blocks, and this is the exceptional case, and they are not having this type of electronic configuration. But if you take the next one, say neon is 10, so 1s2, 2s2, 2p6, this is completely filled. ये दोनों भी क्या है, completely filled है. So this thing, so they don't have the tendency to gain or lose electrons, or they do not share any electrons. You know this pattern. So they have the inner shells are also completed. So if you see some other examples, organs, examples, say argon's electronic configuration I am writing down. सो एवरी टाइम यू विल सी दिस पैटर्न. ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पैटर्न ये ज़रूर रहेगा. 2s2, 2p6, ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ns2 np6. ऐसे 3s2, 3p6. ऐसे आगे आओगी, आगे क्रिप्टन में देखेंगे आप लोग इन 36. देन यू विल फोकस दिस थिंग, 4s2, 4p6 लगेगा. फिर इफ़ यू गो फर्दर जेनॉन 54 पे आओगे तो यहाँ आपका 5s2 एंड में 5p6. इसीलिए मैं लास्ट पोर्शन लेके चल रही हूँ जो रिजेंबल कर रहा है इससे. सो दे हैव दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वन इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट इज नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब इफ़ यू फोकस दिस पोर्शन, ये जो दो हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंबाइनिंग फॉर्म में हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं. और ये पोर्शन जितना है ये सारा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है ना. दिस थिंग वी हैव डिस्कस, बस डिफरेंट वेज होते हैं हाउ यू कैन रिप्रेजेंट देम. नाउ लेट्स कम दिस थिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें फर्स्ट ग्रुप में जो आता है और सेकेंड ग्रुप में जो आता है ना, ये भी वी हैव डिस्कस. दिस इज़ ns1, दिस इज़ ns2. जैसे ns1 में अगर आप सोडियम लीजिए, तो दिस इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये कंडीशन है. तो लास्ट में जो है ये ns1. अगर यही आप दूसरा मैग्नीशियम ले लीजिए 12, सो व्हाट इज़ द केस, ये 3s2, ये ns2 क्या होगा, 2 आएगा यहाँ पर. तो ये केस एस ब्लॉक एलिमेंट्स का हो जाता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन मोर डिटेल, देन इट्स ओके. नाउ इफ़ यू सी ग्रुप वन जो होता है वो ग्रुप वन जो फर्स्ट ए भी आप कहते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं. दिस यू नो, वैलेंसीज +1, दे डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे हुए, दे आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स और दे लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. मैलिएबल होते हैं. देखो कुछ चीज़ें, ये चीज़ें बस फ़र्क हो जाती हैं इनमें, ये पॉइंट्स, बाकी पॉइंट्स सिमिलर होते हैं. देखो, दे डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एल्कली, मीन्स दे विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन. ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दे विल लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मैलिएबल है. ठीक है. मीन्स यू कैन ड्रॉ इनटू शीट्स. डक्टाइल होते हैं ये लोग, सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. कॉमन है, दोनों में कॉमन है. और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों में ये कॉमन है. ठीक है. तो कॉमन पॉइंट्स ही यहाँ पर भी आप सेम पॉइंट यू पुट इट हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो.
ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्स कंपाउंड्स, तो दीज आर द थिंग्स आर देयर, दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। देखो सोडियम है, जैसे 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ईजिली रिमूव हो जाता है क्योंकि मेटल है, तो यहाँ पे आपका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है। सेम विद द केस ऑफ alkaline earth metals also. If you talk about magnesium, so 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स ईजिली निकल जाते हैं, तो लो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ग्रुप तो वी हैव ऑलरेडी गिवन बिफोर हैंड, आई हैव मेंशनड यू। तो इसमें कॉम्पोजिशन होता है NS2 से लेके NP1 से लेके 6 तक होता है। जैसा ग्रुप होगा डिफाइंड वैसे आप करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये ज़्यादातर इसमें ना कुछ ही मेटल्स होते हैं, फ्यू आर मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स भी हैं इसमें, और मेटलॉइड्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आई विल शो यू द जस्ट नाउ द पीरियड। सो व्हाट डू यू थिंक? सो अगर नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स वगैरह चीज़ें हैं तो इसमें क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव देंगे? बहुत कम होंगे, जो इसमें लो ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे लोग। हैलोजेंस वगैरह तो सब इसी में आती है ना, तो हाई वैल्यूज़ ऑफ ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, या आप कह सकते हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। देन दे फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स इज़ ऑल्सो देयर, दे शोज़ वेरिएबल वैलेंसी, इसमें वेरिएबल वैलेंसी आती है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ है, कोई बहुत से एग्जांपल्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वांट टू शो यू, देन आई विल शो यू द ग्रुप ऑल्सो। नाउ दिस आई एम टेकिंग फ्रॉम योर बुक, जस्ट सी बोरॉन इज़ द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यू नो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, NS2 तो कॉमन है सबका, लेकिन NP क्या हो रहा है, या 1 हो रहा है, या NS2 है NP2 हो जा रहा है, या NP3 हो जा रहा है, या NP4 हो जा रहा है, या NP5 NP6, वो तो कॉमन ही है NS2 तो आप इससे आराम से दे सकती है, पूरी रेंज में 1 to 6 वाली रेंज पूरी दी रखी है, राइट। नाउ चिल्ड्रन सी द पी ब्लॉक एलिमेंट्स ओवर हियर, देखो 13 ग्रुप है, ये सब यही तो लिया था हमने, बोरॉन कार्बन इन सब को लिया था। तो यू कैन सी जैसे यहाँ कुछ आपके मेटलॉइड्स भी हैं, ये सब ये नॉन मेटल्स हैं, फ्यू केसेस हैं जो ये सब आपके कौन है, मैं मेटल्स हैं, तो इतने भी वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो, लेकिन हाँ मेटल्स हैं थोड़े, मेटलॉइड्स हैं, द रेस्ट ऑफ देम इन नॉन मेटल। देखो यहाँ हैलोजन सीरीज़ है, और तुम मालूम है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं हैलोजन्स। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट हाउ यू हैव टू गो थ्रू द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओवर हियर यू कैन सी द एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एल्किली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये दिए रखे हैं, so ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। वी हैव डिस्कस दीज टू, वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट दीज नोबल गैसेज ऑल्सो, तो यू कैन सी ओवर हियर। नाउ लेट्स फोकस ऑन ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। द डिफ्रेंशिएटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट एंटर्स इन योर n-1 डी सबशेल, ये बात ध्यान रखना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पहले ही देख चुके हैं कि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो n-1 डी ऑर्बिटल्स में ही जाता है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दीज आर द ग्रुप्स विच यू सी इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड ओवर यह पता है ये जो पूरी ट्रांजिशन सीरीज़ ये करीबन 4 सीरीज़ में डिवाइडेड है। एक तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, फिर आपका सेकंड, फिर थर्ड, और एक होता है आपका फोर्थ। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब ये कैसे होती है, देखो हम लोग ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था तो वहाँ पे मैंने डी का केस तुम लोग को बताया था, जो अपना रूल बताया था, तो उसमें मैंने कहा था डी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 3, तो 3D सीरीज़ को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं, फिर 4D 5D एंड 6D, ये सीरीज़ है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी दिखेगा। अब देखो कैसे, सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज वी आर सेइंग SC, पहला ही मेंबर लेते हैं जहाँ एटॉमिक नंबर 1 था। आई हैव already told you in electronic configuration part how to write down its electronic configuration. Sorry, 3p6 then 3d1 was coming, और ये 4s2 तो भर जाता है
कैल्शियम के बाद से, तो कुछ एक आधे एक्सेप्शनल केस हैं तो इनको भरते हैं और डी को पहले लिखते हैं। तो देखो इसमें 3D सीरीज़ आ रही है, तो यानी ये एग्जाम्पल किस सीरीज़ का है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का मेंबर है। ठीक है, चलो कोई और देखते हैं। Zn लेते हैं, जिंक लेते हैं, 30 था, ये भी हमने करा था। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, नहीं ये भी इसी में आएगा, 3d10 एंड 4s2, ये भी इसी सीरीज़ में फर्स्ट ट्रांजिशन में एलिमेंट है। ये लास्ट मेंबर है, पहला मेंबर शुरू हुआ है, ये लास्ट मेंबर शुरू हुआ है। नाउ टॉक अबाउट सम अदर वन, से 39 हम लेते हैं। ठीक है, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 एंड 5s2, वही ना भरना यही है। फिर ये अब ये किस सीरीज़ में आ गया, ये सेकंड 4d हो गया। 4d किस पे आ रहा है आपका, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। तो आई थिंक बाय राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये देख लेंगे, अगर 4d आएगा तो सेकंड में है, 3d आ रहा है तो वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का मेंबर है, 5d आ रहा है तो वो थर्ड ट्रांजिशन है, इफ़ इट इज़ 6d इट इज़ कमिंग देन यू विल से दैट इट इज़ कमिंग इन द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। सो आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल। दिस वे यू कैन मीन्स जो ये कंडीशन है ना, 3d है, ये 4d है, 5d है, 6d है, ये आपका डिसाइड करता है कि कौन से सीरीज़ में आएगा। ये बेसिकली आपके सबशेल्स हैं। ठीक है, तो दिस वे यू कैन। नाउ दे ऑल्सो हैव द टेंडेंसी, आई एम शोइंग यू फर्स्ट द टेबल। नाउ लेट्स सी द टेबल। ये देखो ये टेबल है, ये आपकी पूरी आपकी कंडीशन आ रही है। देखो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है पहली, दिस इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। यहाँ देखा था ना मैं 3d आ रहा है, ये पहला मेंबर मैंने बताया था, लास्ट मेंबर 3d, यहाँ 3d1 था, यहाँ 3d10 है। ऐसे यहाँ पे 4d1 होगा, ये 4d10 होगा, ये 5d1 होगा, ये 5d10 होगा, है ना, यहाँ 6d1 होगा, ये 6d10 बैठेगा। तो दिस वे योर ट्रांजिशन सीरीज़ आते हैं, है ना। तो दिस वे यू कैन सी। नाउ दीज पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, लाइक दे आर मेटल्स, राइट, दे आर मेटल्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, दे शोज वेरिएबल वैलेंसी, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमेशा याद रखना, दे वर्क एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट एंड दे ऑल्सो पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, दैट पोर्शन विल डिस्कस लेटर ऑन। अलॉयज़ बनाने में हेल्पफुल है, कॉपर वगैरह के अलॉयज़ आपने देखे ना कोर्स में, जिंक में देखे हैं, आपने अलॉय, क्रोमियम का अलॉय देखा है, निकल का अलॉय देखा है, ये सब कहाँ आ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दे आर कमिंग। देन दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज़ न्यू टू यू, so you keep this point over here only. Now let's focus on the other part. Now next is inner transition elements of A or F block elements. Now I have already mentioned you that the electron that entered in this particular subshell, like n-2f में जब जाता है electron, then we talk that this is a F block elements, which we have already discussed and I have already mentioned you, जो इनका electronic configuration होता है वो इस तरह से होता है, n-1 d 0-1 ns2, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख जाता है। तो यू से दैट दे आर कमिंग इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दे हैव 2 रेंज, 2 सीरीज़, जैसे वहाँ 4 सीरीज़ थी, यहाँ पे 2 सीरीज़ आएंगी। नाउ दिस इज़ लेंथेनाइट्स और लेंथेनाइट सीरीज़, एक्टिनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज़, दिस 2 सीरीज़ आर देयर एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ओनली यू कैन जज। अब मैंने तुम्हें याद करो, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि एफ़ के केस में जो होता है वो 3 से कम होती है, या तो 4f होता है या 5f होता है, यही 2 नंबर्स थे, याद करो मेरा रूल। तो जो लेंथेनाइट सीरीज़ है दे विल शो 4f आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको 5f दिखेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें हमेशा एक चीज़ सिखाई थी, S हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, P 2 से, D जो है वो 3 से स्टार्ट होता है और F जो है वो 4 से स्टार्ट होता है। इसमें 2 ही F हमने लिखे थे, तो 4F और 5F इसमें आ रहा था, याद करना। ठीक है, तो वही चीज़ है, 4F की सीरीज़ आपको लेंथेनाइट सीरीज़ लगेगी और 5F की सीरीज़ एक्टिनाइट सीरीज़ लगेगी। नाउ हाउ यू कैन सी, लेट्स फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीजियम लेते हैं, सीरियम 58 एटॉमिक नंबर, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक, ये पहला मेंबर है उस सीरीज़ का। d10, फिर 4 5s2 5p6 5d1 and 6s2।
सो व्हाट यू आर सीइंग, जस्ट सी, फोकस ऑन इट। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल दिया गया है वो ये दिया गया है। अब देखो ये क्या क्या है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चेक करना, क्या है, 6 है, यानी 6x यानी 6s2 इस पे फिट बैठा। उसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग आएगा वो इस फॉर्मूले पे 6 माइनस 1 करेंगे यानी 5d आएगा, या तो 0 रहेगा या 1 आएगा। देखो यहाँ उसी के बगल में लिखा है 5d 1 आ रहा है, यानी ये सेट, ये दोनों सेट कर रहे हैं। फिर ये n-2f पे देखो, 6 माइनस 2 इज़ 4f। अब 4f ढूंढो, 4f पे क्या आ रहा है, 4f पे 1 आ रहा है, बिल्कुल सेट कर रहा है हमारा। 4f1 5d1 and 6s2 it is coming, तो इट्स मीन इट इज़ अ f ब्लॉक एलिमेंट। और क्योंकि इसमें 4f आ रहा है देन इट इज़ लेंथेनॉइड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिनाइड्स। मेरी चीज़ क्लियर हो रही है? चलो कोई दूसरा ल्यूथेरियम दे लो, एटॉमिक नंबर। आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। जैसे सी, ये 6s है जो NS2 को रिजेंबल कर रहा है। फिर यहाँ पे 5 आएगा, आपका 5d आएगा, 1 है, ये रिजेंबल कर रहा है। फिर आपके पास क्या आ रहा है, 4f, ये आ रहा है 14, तो ये सेट कर रहा है, ये f ब्लॉक एलिमेंट है आपका। अब एक्टिनॉइड सीरीज़ में आप देख लीजिए, एक्टिनॉइड whenever you look towards the electronic configuration then only you will have an idea. So focus on the maximum principal quantum number that is 7, तो NS2 जो है आपका 7s2 आ रहा है। फिर यहाँ पे तो n-1 आएगा, यानी n-1 क्या आ रहा है, d 0 या 1, तो ये 6d 1 आ रहा है आपका। फिर n-2 f 1 to 14 है, तो देखो 4f पे, सॉरी 5f पे कितनी वैल्यू आ रही है, 5f पे इस पे आ रही है वैल्यू इस 2। तो दिस इज़ द केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, और ये एक्टिनाइड सीरीज़ में आएगा, है ना। कैसे पहचाना ये लेंथेनाइड सीरीज़ में एक्टिनाइड, क्योंकि हमने क्या बताया था, दो ही चीज़ होती है, या तो 4f होता है, 5f होता है। इफ़ इट इज़ 4f देन इट इज़ कमिंग इन द लेंथेनाइड सीरीज़, इफ़ इट इज़ 5f देन इट इज़ कमिंग इन द एक्टिनाइड सीरीज़। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। तो दिस वे दीज आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स। ये दोनों सीरीज़ में जितने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, दे आर मेटल्स, दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी they have. They also show variable valencies, and they shows several oxidation states. They are colored compounds, alloys, and they form paramagnetic in nature. और actinide series के जो member होते हैं वो radioactive भी nature के होते हैं. They also form complexes also. So we have covered up with the properties, and please focus on it and learn them. Sometimes objective questions are asked from these points or short notes.